رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میں کچھ سنانے نہیں آیا پڑھانے آیا ہوں۔ یہ بیان نہیں ہے، یہ ایک ورکشاپ کہہ لیں آپ، ایک کلاس روم کہہ لیں آپ، تو یہ کلاس روم ہے۔ آج اس تاجران کی تربیت اجتماع میں ہم نے خاص اہتمام کیا ہے آپ حضرات کے لیے۔ میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے 15-20 منٹ کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا موضوع کیا ہے۔ کیا موضوع جناب؟ سود کیا ہے؟ یعنی ہم علماء سے، مبلغین سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ سود حرام ہے۔ بحیثیت مسلمان سود سے ہمیں بچنا ہے، لیکن اگر معلومات نہیں ہوں گی کہ سود کیا ہے، ہم عین ممکن ہے وہ کام کر رہے ہوں جس میں سود پایا جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ سود حرام ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی یہ وعیدیں ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، آج یہ موضوع ہوگا کہ سود ہے کیا، سود کیا ہے، مثالیں اور اقسام۔ سود کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ کتنی چیزیں؟ ہم جو رقم کسی کو دیتے ہیں اس کی 3 صورتیں، یا تو بطور امانت دیں گے، کیا دیں گے؟ بطور امانت، یا بطور قرض دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے، بطور انویسٹ۔ کتنی صورتیں ہوئیں؟ 3 صورتیں۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ اگر ضائع ہو گئی، خود اگر ضائع ہو گئی تو کسی قسم کا تاوان یا تلافی نہیں ہے۔ ہاں، اپنی غلطی سے ضائع کی، تجوری کھول کے سو گیا، دروازے کھول کر سو گیا، اپنی غلطی پائی گئی تو تلافی دینی پڑے گی۔ اب امانت کب رکھوائی جاتی ہے؟ آپ یاد کیجئے نبی اکرم علیہ السلام جب آپ نے ہجرت کا سفر کیا مدینہ منورہ کے لیے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد وہ تمام چیزیں کر دیں کہ جو اہل مکہ نے آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، امین سمجھ کر کہ ہماری یہ چیزیں آگے پیچھے نہیں ہوں گی، حضور علیہ السلام امین ہیں۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور تشریف پھر لے کر گئے۔ آج کل امانت رکھوانے کا رجحان کم ہے۔ بینک لاکرز کے اندر ہم جو کچھ رکھتے ہیں نا، وہ امانت ہوتا ہے۔ اگر ڈکیتی ہو جائے تو بینک ذمہ دار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لاکرز کا بینک ذمہ دار نہیں ہوتا، کہتا آپ کے پاس چابی، آپ جو مرضی رکھیں۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض
کا مقصود خرچ کرنا ہوتا ہے. امانت اور قرض میں بڑا فرق یہ ہے، قرض آپ اپنی ضروریات کے لیے لیتے ہیں تاکہ ان ضروریات کو پورا کیا جا سکے. قرض کو سنبھال کے رکھنا، تبدیل نہ کرنا، اس میں تصرف نہ کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ قرض کے مقاصد فوت ہو جائیں گے. قرض ہر صورت میں قابل واپسی ہوتا ہے. ہمارا بینکوں میں کوئی بھی پیسہ پڑا ہو، کرنٹ اکاؤنٹ میں، سیونگ میں، بینک واپس دیتی ہے نہیں. ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس نے واپس دینا ہی دینا ہے. قرض کے شریعت میں بھی یہی احکام ہے. قرض ہر صورت میں قابل واپسی ہے، لیکن قرض نفع لینے کا موقع نہیں ہے. ہم نے 3 صورتیں بیان کی نا، امانت، قرض اور انویسٹ کے طور پر دینا. قرض ہے ایک نیکی، ایک احسان کہ کوئی کسی پریشانی میں ہے، عارضی طور پر اس کی مدد کر دی جائے تاکہ اسے ریلیف ملے، وہ اپنی اس مشکل سے نکلے اور پھر آپ کی رقم آپ کو واپس کر دے. اس کو ہم مجازی طور پر امانت بھی بول دیتے ہیں. قرض بہرحال واجب الادا رقم ہوتی ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ مشہور ہے، کراچی میں تو مشہور ہے، یہاں کا نہیں پتہ. لوگ کہتے ہیں جی قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو لے کے واپس نہ لیا جائے. یہ درست نہیں ہے. قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی نفع نہ لیا جائے، بغیر کسی ذاتی لالچ کے سامنے والے کو دیا جائے، اس کی مدد کے طور پر، نیکی، احسان اور بر کے طور پر. وہ قرض ہوتا ہے. نفع لے لیا تو سود بن جائے گا. قرض سمجھ گئے جناب؟ آگے چلو. چلیں. انویسٹ کے لیے رقم دینا، ایک تو کہ آپ خود کام کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں. جو رقم بطور انویسٹ دی جائے اسے کیپٹل یا راس المال یا کیپٹل کہتے ہیں. عربی کا لفظ ہے راس المال، انگریزی میں کیپٹل کہتے ہیں. یہ رقم کسی دوسرے کو نفع و نقصان کی بنیاد پر دی جاتی ہے. شریعت میں انویسٹ کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو آپ جو رقم دے رہے ہیں آپ کا بھی مال ہوگا اور اس کا بھی ہوگا، یعنی اس کی بھی رقم شامل ہوگی اور آپ کی بھی شامل ہوگی. اگر یہ صورت پائی جائے تو اسے پارٹنرشپ یا شراکت کہتے ہیں. اور اگر آپ کا پیسہ ہے، اس کی محنت ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مداربت. کیا کہیں گے؟ یا سلپنگ پارٹنرشپ. مداربت یا سلپنگ پارٹنرشپ. انویسٹ کے اندر مقصود نفع ہوتا ہے. آپ دوسرے کو اس لیے رقم دیتے ہیں کہ وہ اگر اس کا پیسہ نہیں ہے، محنت ہے، کام شروع کرے، اس کا تجربہ، آپ کے پیسے، دونوں مل کر کام شروع کرتے ہیں. انویسٹر انوالو نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں. اور جو ورکر ہے وہ کام کرتا ہے. نفع جو ہے وہ تناسب کی بنیاد پر طے ہونا ضروری ہے کہ جو بھی نفع ہوگا اتنے پرسنٹیج سے ہم لیں گے. پرسنٹیج کم زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مداربت میں شرکت کے اندر اس کا بھی پیسہ ہے، آپ کا بھی پیسہ ہے، یہاں بھی پرسنٹیج کم زیادہ ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ میرے 50% ہے تو میں 50% ہی نفع لوں گا. ضروری نہیں ہے. ایک صورت کا خیال رکھنا ہے بس. مثال کے طور پر زید اور بکر، انہوں نے پارٹنرشپ کی. زید کے پیسے ہیں 20 لاکھ اور وہ کام بھی نہیں کر رہا، سلپنگ پارٹنر ہے. عمر کے پیسے ہیں 50 لاکھ. کس کے پیسے زیادہ ہوئے؟ عمر کے زیادہ ہوئے. اور عمر ورکنگ پارٹنر ہے، سلیپنگ پارٹنر نہیں ہے. اس صورت کے اندر زید کے پیسے بھی کم ہیں اور وہ ورکنگ میں بھی نہیں ہے، تو اپنے کیپٹل سے زیادہ یہ نہیں لے گا. یہ ایک صورت ہے. باقی صورتوں میں اگر یہ ورکنگ میں ہے، عام طور پر ورکنگ والا زیادہ مانگتا ہے.
तो वो भले 90% ले ले, अगरचे कि उसका 1 लाख शामिल हो और इन्वेस्टर का 1 करोड़ शामिल हो, शरीयत ने कोई रोक टोक नहीं रखी। बाहम जो मुआहदा होगा उसके रूप से परसेंटेज तय करना होगी। शिरकत के अंदर कभी भी फिक्स रकम तय नहीं की जाती कि हर महीने इतने दे देना, ये शिरकत नहीं है। शिरकत नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर होती है। दोनों के पैसे हो तो नुकसान हमेशा कैपिटल के हिसाब से आता है, जिसका जितना कैपिटल है उस एतबार से नुकसान। एक के पैसे हैं और एक की मेहनत है तो नुकसान की काफ़ी तफसील है, यानी जो समझे कि उसमें ज़्यादातर नुकसान तकरीबन इन्वेस्टर का ही होता है। अब हमारे आम लेन देन में अमानत और कर्ज की मिसालें, अमानत और कर्ज की मिसालें चलते हैं। हम किसी को उधार में रकम देते हैं, कर्ज के तौर पर देते हैं, उधार के तौर पर देते हैं। ये क्या है? कर्ज है। क्या है ये? कर्ज है। मैं पेज नंबर 6 पर हूँ, पेज नंबर 6 देख लीजिएगा। असल में ये मुश्किल चीज़ें हैं ना, तो मैंने सोचा कि जब आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे ना सारी भूल चुके होंगे, तो क्यों ना ये चीज़ आपके पास रहे। पेज नंबर 6 पर आ जाए। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा साथ साथ रहे, आई कंटेंट बरकरार रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। जो रकम हम करंट अकाउंट में जमा करवाते हैं वो कर्ज के हुक्म में। किस हुक्म में है? कर्ज और अमानत का फ़र्क मैंने अर्ज़ किया था ना कि जो हर सूरत में काबिल वापसी है वो कर्ज होता है। करंट अकाउंट से मकसूद नफ़ा तो नहीं होता ना कि तीसरी किस्म में हो। करंट अकाउंट में जो रकम होती है हमारी, वो क्या होती है? हमारे यहाँ बीसी डाली जाती है, कमेटियाँ और बीसियाँ डाली जाती हैं। तो जो लोग ये रकम डाल रहे होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि जी हमारे पास हमने महीने के आखिर में देनी होती है, तो ये रकम जमा होती रहती है, हम इसको खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो इस रकम को अमानत का नाम दिया जाए तो खर्च करना जायज़ नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ सबको पता होता है कि इसका पैसा रोलिंग में रहता है और आखिर में बिरा ये दे देता है। तो एक दलालतन इजाज़त मौजूद होती है उसको खर्च करने की। इसी बिना पर बीसी की जो रकम बीसी या कमेटी डालने वाले के पास जमा होती है उसको हम कर्ज का नाम देते हैं। यही वजह है, चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए, बहरहाल उसको देनी है। वो ये नहीं कहेगा वो फलां भाग गया था और यूँ हो गया और वो हो गया, बहरहाल उसको देनी होती है। अब मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पंजाब में बीसी बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं? कमेटी बोलते हैं। कमेटी जो है किसी की निकल आई, 25-25 हज़ार रुपये जमा करवाने थे हर महीने, दूसरे महीने निकल आई 5 लाख रुपए। कितने जमा करवाए थे इसने? 50 हज़ार। इसको कितने मिल गए? वो 5 लाख में से 50 तो ये दे चुका है, बाकी रकम इस पर क्या होगी? कर्जा होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप ज़कात निकालेंगे तो आप इसको ड्यू अमाउंट में शुमार करेंगे, पेएबल अमाउंट में शुमार करेंगे कि मैंने बीसी की मद में 5 लाख ले लिए थे और मैंने जमा करवाए हैं 50 हज़ार रुपये, तो 4.5 लाख रुपए का तो मैं मकरूज़ हूँ। तो ये जो रकम ज़्यादा होती है किस हुक्म में होती है? कर्ज के हुक्म में होती है। आगे चलिए। नौकरी पेशा अफराद का जीपी फंड जमा होता रहता है, वो इदारे के पास तो नहीं होता, बैंक में होता है। जीपी फंड या प्रोविडेंट फंड वो आपकी सैलरी से मिन्हा होने के बाद, कटने के बाद जमा होता है। तो जहाँ जमा हो रहा है उनके ऊपर हमारा कर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं देंगे हमें, वाजिबुल अदा होता है ना उनके ऊपर। तो ये रकम हमारी होती है कर्ज के हुक्म में। कर्ज की एक मिसाल, आप लोग मुख्तलिफ मौके पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाते हैं। जैसे घर किराए पर लेना है, दुकान मकान किराए पर लेना है, क्या करेंगे? जो रकम जमा करवाते हैं उसे एडवांस कहते हैं आमतौर पर। तो ये रकम सामने वाला इसका मालिक बन जाता है या वाजिबुल अदा होती है? बताइए। वाजिबुल अदा होती है। जब वो मकान दुकान छोड़ेंगे तो आपने वो रकम वसूल करनी होती है।
پہلے زمانے میں صوبہ پنجاب کے لوگ وہ کام نہیں کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں. پنجاب میں زیادہ ہے، سندھ میں اب بڑھتا جا رہا ہے. یہ دکان مکان پہ سیکیورٹی ڈپازٹ، اس کا مقصد کیا تھا کہ بھی کرایہ دار 2-3 مہینے کا کرایہ لے کر نہ بھاگ جائے. اگر وہ گھر میں رہ رہا ہے تو بجلی کے بل، کوئی کھڑکی توڑ دی ہو، کوئی دروازہ توڑ دیا ہو، کوئی نقصان کر دیا ہو، تھوڑی بہت رقم رہے تاکہ اس پر جو واجبات آئیں گے اس رقم سے وہ پورے کر دیے جائیں. اس رقم کا کیا حکم ہے؟ قرض کا حکم ہے نا. قرض سے نفع لینا جائز نہیں ہے. قرض سے نفع لینا، اب اس ایڈوانس کو جن مقاصد کے تحت لیا جا رہا ہے وہ سود ہے. میں اس کی تشریح آگے جا کے کروں گا. فی الحال اتنا سمجھیے کہ یہ جو ہمارا ایڈوانس جمع ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ قرض ہے. ہمارے پیسے ہیں، اس کے اوپر قرضہ ہے. کسی کے پاس رقم رکھوائی کہ یار یہ میری رقم سنبھال کے رکھیے گا. پرائز بانڈ اس کی مثال ہے. آپ اگر کسی کے پاس پرائز بانڈ رکھوائیں گے تو کیا اس کو اجازت دیں گے وہ نمبر تبدیل کر دے؟ امانت کا یہی حکم ہوتا ہے. اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. تو اگر آپ نے اس طور پر رکھوائی ہے بھی تبدیل نہیں کرنا تو یہ امانت ہے. آپ کی دکان پر کوئی گاہک آتا ہے اور اپنا سامان بھول جاتا ہے، یہ قرضہ نہیں ہے. قرضہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، باہم رضامندی سے ہوتا ہے. یہ جو بھی بھول جائے گا یہ امانت ہوگی. کیا ہوگی؟ امانت ہوگی. اس کو فقہا کی زبان میں لقطہ کہتے ہیں. مطلب گرا پڑا مال کہیں سے ملا، لاوارث مال ملا، لوگ مال مفت سمجھ کر رکھ لیتے ہیں. اگر کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ نہیں اس کو استعمال کر سکتا، خرچ اس کو نہیں کر سکتا. اس کے پاس یہ امانت ہوگی، اس کو حفاظت کرنی پڑے گی، سنبھال کے رکھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سنبھال کے رکھنا پڑے گا. یہ میں نے بیان کی ہے ایک تمہید، اور تھوڑی سی اس بات کی وضاحت. قرض الگ رقم ہوتی ہے، امانت الگ رقم ہوتی ہے. ہم کسی کو انویسٹ کے لیے دیں وہ ایک الگ رقم ہوتی ہے. انویسٹ بہت ہاٹ ٹاپک ہے. انویسٹ کیسے کیا جائے، کیا طریقہ ہو، نقصان کے کیا معاملات رکھے جائیں، پرسنٹیج کے مسائل، یہ مسائل وہ مسائل. آج ہمارا موضوع انویسٹ نہیں ہے، آج ہمارا موضوع سود. سود کی 2 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ قرض کے بدلے نفع حاصل ہونا، یہ سود ہے. اس کے بدلے، قرض کے بدلے حاصل ہونے والا اضافہ یا ادھار کی بعض صورتوں میں وہ سود پایا جاتا ہے. یہ ہے پہلی قسم. سود کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ان کو بارٹر سسٹم کے تحت آپ تبادلہ کریں گے تو سود پایا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آپ نے صرف ان چیزوں کو لین دین کیا ہے تو سود پایا جائے گا. یہ دوسری جو صورت ہے اس کی فوٹو، تصویر، قسمیں سب لکھی ہوئی ہیں، آگے آ رہی ہیں. پہلی قسم آسان ہے کہ جہاں قرضے پر نفع لیا جائے وہ سود ہوگا. کیا ہوگا؟ سود ہوگا. فقہاء کرام نے اس کی تعریف کیا بیان کی ہے؟ الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضات الخالی عن عوض شرط فيه. سود اس اضافے کو کہتے ہیں، سود اس اضافے کو کہتے ہیں کہ جو اضافہ مشروط ہو، کمپلسری ہو، کہ یہ اضافہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اضافہ کسی اگینسٹ سے خالی ہو، کسی چیز کے بدلے سے، معاوضے سے خالی ہو. تھوڑی سی مشکل ہے، 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا بس آپ کو. اب اس مثال کو سمجھیے.
ایک شخص نے 1,00,000 روپے بطور قرضہ دیا اور واپس کتنے لیے؟ 1,10,000. جب 1,10,000 واپس لیے اور ان کا طے تھا کہ جناب آپ نے جب واپس دینے ہیں تو 1,10,000 واپس دینے. 1,00,000 کے بدلے 1,00,000 آ گئے. 10,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ کسی چیز کا بدلہ ہے نہیں ہے. تو سود کی ایک موٹی سی تعریف یہ ہے، سود کی کئی اقسام ہے نا. ایک قسم کی تعریف یہ ہے کہ جس رقم کے اندر کوئی اگینسٹ نہ پایا جائے، کوئی بدلہ نہ پایا جائے، وہ سود ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ قسطوں والوں کے پاس جاتا ہے، قسطوں کا کام کرتا ہے نا، اور اس کو وہ چیز ملنی ہے 1,25,000 میں، کیش میں وہ ملنی ہے 1,00,000 روپے میں. سمجھ گئے بھائی؟ اس کا دوست یہ کہتا ہے کہ تم 25,000 روپے نفع دے رہے ہو اس آدمی کو، تم ایسا کرو یہ مجھ سے کیش لے لو 1,00,000 روپے، 1,00,000 روپے کی جگہ چیز خرید لو، اور تم مجھے بجائے 1,25,000 کے 1,10,000 لوٹا دینا. اس کے دوست نے بظاہر تو اس کے ساتھ ایک ایسا کام کیا کہ 15,000 کے نقصان سے بچا لیا، 15,000 کا اس کو بینیفٹ پہنچا، لیکن حقیقت میں اس کے دوست نے جو 1,00,000 دے کر 1,10,000 روپے لیے اور 10,000 روپے جو اضافہ لیا، یہ اس نے سود لیا ہے. اب اگر تھوڑی سی تبدیلی کر لی جاتی، وہی کہتا ہے کہ آپ کو کیا خریدنا ہے، آپ کو اچھا 2-3 آئٹم خریدنے ہیں، LCD خریدنی ہے، اس کو موٹر سائیکل خریدنا ہے، فریج خریدنا ہے. ایسا کرتے ہیں پہلے میں خرید لیتا ہوں، آپ پسند کر لیں دکان سے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں وہ چیزیں کیش میں خرید لیتا ہوں. تو اس نے یہ 2-3 آئٹم خرید لیے اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ میں نے جو مال ہے آپ کو 1,10,000 میں بیچا. اب جو اضافہ ہوا ہے 10,000 کا، وہ کس چیز کے بدلے ہے؟ مال کے بدلے. پہلی صورت میں تجارت کا معاہدہ دونوں کے درمیان نہیں ہوا تھا، کیش کا معاہدہ ہوا تھا کہ تم یہ پیسے لے جاؤ، 1,10,000 دے دینا. دوسری صورت کے اندر اس نے ایک مال خریدا. ضروری ہے کہ خریدنا پایا جائے، اور اس کو نہ کہ تم خرید کے لے آؤ، نہیں. خریدنے کے اندر ہمیشہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا. تو پہلے یہ خریداری کے تقاضے پورے کرے گا، مال اس دکان سے خریدے گا، خرید لیا، اب خود ایک پارٹی بن کے وہ مال بیچے گا، بیچ دیا. اب اس نے مال بیچا، اس سے کوئی نئی چیز تھوڑی کی ہے. آپ روزانہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہول سیل میں لیتے ہیں اور ریٹیل میں بیچتے ہیں. تو تجارت اسی چیز کا نام ہے نا. لیکن آپ نفع لیتے ہیں مال کی بحاف پر، تجارت کی بحاف پر. جب قرآن کریم فرقان حمید نے سود کی حرمت نازل کی تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا، کہنے لگے لو جی فرق کیا ہوا، ایک ہی تو بات ہے، ہم بھی نفع لیتے ہیں تم بھی نفع لیتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. کہنے لگے کیا فرق ہے دونوں میں، ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع، بیع کا ترجمہ ہے، بیع کا ترجمہ ہے تجارت، ٹریڈنگ. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت پائی جائے گی تو حلال ہے. وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ تجارت اور سود کا جو موڈ آف ایکٹیویٹی ہے مختلف ہے. تجارت کو ٹریڈنگ کہیں گے اور اس کو پیسہ دینا کہیں گے. تو وہ تمام صورتیں، وہ تمام ایگریمنٹ جو تجارت کہلاتی ہیں اس سے نفع لینا جائز ہے. میں نفع لینے کی 2 ہی صورتیں رکھی ہیں شریعت نے. یا آپ اپنی محنت پر نفع لیں،
जैसे आप कोई ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है, हलाल है कमीशन एजेंट का काम, अहद रिसालत से साबित है। कोई मुलाजिम है तो ये अपनी सर्विस का जो है वो अपनी खिदमात के बदले में पैसे लेते हैं। वो खिदमात शरीयत ने जिनको खिदमात मोतबरा करार दिया है, वरना तो बैंक भी कहता है हम आपको खिदमात फराम करते हैं, आपको सर्विस फराम करते हैं। बैंक की कुछ सर्विस ऐसी हैं, ठीक है, उसमें मुआवजा बनता है, लेकिन पैसे के बदले मुआवजा नहीं बनता। जहाँ कर्ज पाया जाएगा उस पर नफा लेने की कोई सूरत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। सूद की दो किस्में हमने बयान की, एक जहाँ कर्ज पर नफा लिया जाए और एक मखसूस चीज़ों में। मैं मिसाल दे देता हूँ, एक आदमी के गांव में दाने ख़त्म हो गए, गंदम, या उसका काम है गंदम का, अनाज मार्केट में होता है। दूसरे आदमी को कहता है कि तुम ऐसा करो, मुझे 50 मन गंदम दे दो, और जब मेरे पास गंदम आएगी मैं तुम्हें 60 मन दे दूंगा। तो मुझे 50 मन दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 60 मन गंदम दूंगा। तो ये यहाँ कर्ज नहीं पाया जा रहा, ट्रेडिंग पाई जा रही है। लेकिन ये ट्रेडिंग की ये सूरत सूद है। सूद की दो किस्में की हमने, एक कर्ज वाली और एक इस तरह की बाटर सिस्टम वाली। अभी हम कर्ज वाली सूरत पर चलते हैं। सूद की पहली किस्म कर्ज पर नफा की सूरतें, कर्ज पर नफा की सूरत। पहली किस्म देखें क्या आती है हमारे सामने, कर्ज पर नकदी नफा लिया जाए। वही जो सूरत मैंने अभी आपके सामने बयान की, 1 लाख किसने दिए, 1,10,000, 1,01,000, 1,02,000, 1,01 रुपया भी लेगा, ये भी सूद होगा। अब जो नफा लिया वो किस सूरत में लिया है, पैसों में लिया है। नफे की दूसरी किस्म कौन सी है कि कर्ज पर हाथ में तो कुछ ना आए, लेकिन कुछ सहूलतें मिल जाएं, कुछ बेनिफिट मिल जाएं। कर्ज ना दिया होता, अगर हमने सामने वाले को कर्ज ना दिया होता तो वो बेनिफिट्स, वो सहूलतें हमें कभी भी ना देता। हदीस पाक में फरमाया गया, कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफिअतन फहुव रिबा। कर्ज से जो भी नफा उठाया जाए वो सूद है। बहुत सारे लोगों की गलत फहमी होती है कि जनाब हम पैसे थोड़े ले रहे हैं, हमने तो पैसे लिए ही नहीं है, हराम है हमारे ऊपर तो पैसा लेना। लेकिन बहुत सारे हाजी, नमाजी, दाढ़ी वाले उस दूसरी किस्म में इसलिए मुब्तला होते हैं कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि ये भी सूद है, वरना वो एक लम्हा नहीं लगाते इसको छोड़ने में। तो यही वजह होती है कि इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है। कौन सा इल्म दीन? किसान के लिए किसान के मामलात, ताजिर के लिए ताजिर के मामलात, मजदूर के लिए मजदूर के मामलात, जो जिस शोबे से वाबस्ता है उसके मुतालिक इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ये शरीयत की हमारे ऊपर तख़फ़ीफ़ है। शरीयत ने ये ज़रूरी करार नहीं दिया कि आप पूरा दीन पढ़ना फ़र्ज़ है, नहीं। अगर आपने शादी कर ली है तो आपको पता होना चाहिए किन अल्फाजों से तलाक हो जाती है। ये ना हो तलाक हो गई और आप हरामकारी करते रहें और बीवी के साथ रहते रहें, आपको पता ही ना हो। अदमे इल्म माफ़ी का सबब नहीं है। अदमे इल्म ना होना माफ़ी का सबब नहीं है, बल्कि दोहरा गुनाह है कि एक तो आप जिस चीज़ से वाबस्ता थे आपने उसके मुतालिक इल्म हासिल नहीं किया, दूसरा ये कि वो गलती की। तो बाद ये लोग ये कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था, 3 तलाक हो जाती है इन अल्फाजों से, हम तो साथ रहते रहे। ऐसे ऐसे केस भी आए हैं कि 5-5 बच्चे हैं, फिर पता चलता है कि जनाब अच्छा तलाक हो जाती है। तो शरीयत ने एक बड़ा ही हुस्न पर मुश्तमिल एक तरीका हमें दिया, जिस चीज़ से जो मुताल्लिक है उसका इल्म हासिल करें। अब हमारे पास कुछ दिन पहले एक मसला आया, बल्कि पिछले 1 महीने में 2 मसले आ चुके हैं, 2 मुख्तलिफ अतराफ से। बच्चे को 2.5 साल की उम्र तक अगर कोई औरत दूध पिला दे तो वो औरत उसकी माँ बन जाती है। वो औरत माँ बन गई,
उस औरत की औलाद, बेटा बेटी, दूध पीने वाले के भाई बहन हो गए, उस औरत की माँ नानी हो गई, उस औरत की बहनें खालाएं हो गई। जिस तरह खूनी रिश्ता कायम होता है, तकरीबन उसी तरीके से दूध पीने की वजह से वही रिश्ते कायम हो जाते हैं, निकाह हराम हो जाता है। पता ही नहीं था कि निकाह इस तरह हराम होता है। एक तो ये वजह होती है। एक क्या वजह होती है? बचपन की बात थी, किसी एक दो को पता है, बाकियों को पता ही नहीं चला। निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, पता चला कि ये तो इसकी दूध शरीक बहन है। उनको 2 साल बाद अलग होना पड़ा। तो यूं इस बात का एहसास पैदा करना जरूरी है कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम में आप इन्वॉल्व हैं, शरिया लॉ इस हवाले से क्या कहता है, शरिया गाइडेंस क्या आपने हासिल की है। बहुत सारी यूँ समझिए आप कि 70-80% ऐसी बातें होती हैं कि थोड़ा सा तरीका बदल लिया जाए, बस मामलात आसान हो जाते हैं। ये जो किस्म है कर्ज पर नफा लेना, नकदी नफा लेना, आइए इसकी सूरतें हम देखते हैं। कर्ज पर नकदी नफा की पहली सूरत, बैंक जो कुछ नफा देते हैं, कमर्शियल बैंक, इस्लामिक बैंकिंग की मैं बात नहीं कर रहा, और ना इस्लामिक बैंकिंग से अभी तक हमने इत्तेफाक किया है, इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन उसको हम सूदी करार नहीं देते। उसकी कुछ चीज़ों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसको हम सूदी नहीं कहते। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने इस्लामिक बैंकिंग पर जो रिसर्च की है, बात चीज़ें ऐसी पकड़ी हैं कि जनाब आप यहाँ तो सूद दे रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग होती है वो सुकूक के अंदर होती है। एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं खरबों के अंदर, और ये सारे इंश्योर्ड होते हैं सूद पर, लेकिन जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने सूद करार नहीं दिया। बहरहाल कमर्शियल बैंकिंग की बात हो रही है। कमर्शियल बैंकिंग जिस नाम पर भी नफ़ा देती है, सर्टिफिकेट के नाम, सर्टिफिकेट है जनाब फला फला फला, जनाब सेविंग अकाउंट है, जनाब फला अकाउंट है, जनाब फला अकाउंट है, तमाम की तमाम सूरतें सूद पर मुश्तमिल होती हैं। और आपका जो पैसा जमा हो रहा है सेविंग अकाउंट में भी, वो नफ़े नुकसान की बुनियाद पर पैसा जमा नहीं हो रहा होता, फिक्स नफ़ा होता है। बैंक जो चाहे करे, कितना लॉस हो, कितना उसको नुकसान हो, कितना फ़ायदा हो, मशरूत पहले से जो तय हो चुका है वो वही नफ़ा देगी। और जो रकम हमारी जमा होती है वो क्या होती है? कर्जा होती है बैंक के ऊपर। दूसरी, कमर्शियल बैंकिंग से जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, कोई उसके साथ डील करते हैं, साफ लिखा होता है कि जनाब आप जब इसकी किस्त देंगे इतनी आपकी असल अमाउंट होगी और इतना काइबोर रेट के एतबार से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आज इतना काइबोर रेट है और जब भी जितना होगा आपको उतना सूद देना पड़ेगा। तो उस साफ लिखा होता है सूद हम ले रहे हैं, कैसे कह सकते हैं हमको सूद नहीं है? आप भी से इख्तिलाफ नहीं करेंगे। तीसरी सूरत, जनरल इंश्योरेंस के अंदर तो ये होता है कि उसने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है, साल बाद वो रकम पूरी, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, कोई हादसा नहीं हुआ तो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो हमारी रकम जमा होती है वो एक पॉलिसी बनती है उसकी, जनाब 20 साल पॉलिसी है, 15 साल पॉलिसी है, और मर गए तो वो मिल जाएगी, वरना ये बात अंडरस्टूड होती है कि उतने साल पूरे होने पर वो इतने गुना ज़्यादा होकर मिलेगी। वो जो भी नफ़ा है वो नफ़ा सूदी नफ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस के अकाउंट में जो भी पैसा ऐड होता है, इजाफा होता है, ज़्यादा होकर मिलता है, वो सूदी रकम होती है। अब इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं एजेंट, इन छोटे छोटे बुकलेट छापे होते हैं, जी फला आलिम साहब ने हमें कह दिया हलाल है, आला हज़रत ने काम शरीयत में लिख दिया जनाब हलाल है, आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अफसोस की बात है कि दुकान चलाने के लिए शरीयत को बदनाम करते हैं। आला हज़रत ने काफिर की कंपनी के बारे में लिखा था। आला हज़रत जब थे अंग्रेज़ की हुकूमत थी, बल्कि वो जारी थी, तकरीबन अंग्रेज़ की हुकूमत जारी थी, इदारे उसके थे, कुफ़ार के थे। आला हज़रत ने उनकी बात की थी। और आज हमने भी इजाज़त दी, जो लोग यूके में, यूरोप में रहते हैं और रहने के लिए घर जो है
काफिर कंपनी से अगर वो मॉर्गेज करते हैं तो रहने के लिए घर की हमें इजाजत दी है। मुसलमान और काफिर के दरमियान सूद नहीं पाया जाता। काफिर को आपने पैसे दिए 1,10,000 ले सकते हैं, लेकिन इसको सूद ना कहें, इसको नफा कहें। पैसे आपने दिए और नफा आपने लिया, ये सूरत जायज है। पैसे आपने कर्जा लिया और नफा उसको दिया, ये सूरत जायज नहीं है काफिर के साथ भी। समझे भाई? बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। शेयर मार्केट एक पूरा हाथी है, बहुत बड़ा एक निज़ाम है। शेयर मार्केट के अंदर कुछ सूरतें ऐसी हैं कि उनके सूद होने में कोई शक नहीं है। जैसा कि शेयर मार्केट के अंदर जो बदले का काम होता है, आपके पास पैसा नहीं है, बैंक खड़ा हुआ है, हमसे पैसा ले लो। ब्रोकरेज हाउस होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो खड़े होते हैं, हम पैसा देते हैं। जितना सूद बैंक नहीं लेते होंगे उससे कई गुना ज्यादा ब्रोकरेज हाउस लेते हैं। तो कराची में स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें 200 ब्रोकरेज हाउस है, और कोई भी शेयर जो है वो लेना और देना जो होता है ये ब्रोकरेज हाउस के बगैर नहीं हो सकता। एक तो ये आपके पास पैसा आप ले, उससे आपसे कमीशन लेगा, और जायज बात का कमीशन लेना जायज है। बदले की सूरत ये होती है, जिसको बदले वाले शेयर कहते हैं, कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको लगा डील बड़ी अच्छी है, कहता ले लो हमसे पैसे और लुटा देना, पर डे इतना सूद होगा। तो बदले की जो सूरतें जितनी भी हैं वो सूद पर मुश्तमिल होती हैं। इसी तरीके से एक शेयर होता है प्रीफरेंस शेयर, उर्दू में कहते हैं तरजीही हिस्स। इसके अंदर कंपनी ये कहती है कि जनाब हमारे 50 लाख शेयर जारी हुए हैं, वो सारे बंदे एक तरफ, लेकिन हमने सबसे पहले आपको इतना नफा जरूर देना है, बाकियों को नहीं देना। आपको इतना जरूर देना है, फिर हम बाकियों को देखेंगे। ये भी जो प्रीफरेंस शेयर के ऊपर नफा मिलता है, ये भी एक सूदी नफा है। कंपनी नफा नुकसान की बुनियाद पर नहीं देती, एक फिक्स नफा तय करके दे रही होती है। आम जो नफा होता है शेयर का, वो नफे नुकसान की बुनियाद पर होता है। अगर किसी ने बैंक के शेयर खरीदे हुए हैं, तो बैंक ने क्या काम करना है, कहां से कमाना है? सूद से कमाना है। किसी ने पेट्रोलियम कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसने पेट्रोल बेच के कमाना है। फर्क तो रहेगा ना। ये अलग बात है कि शेयर के अंदर बहुत डिटेल है, बहुत तफसील है, बहुत सारे मौके पर जायज़ नाजायज़ मामलात मौजूद हैं, लेकिन ख़ास सूद जहां पाया जा रहा है वो दो सूरतें मैंने आपके सामने रखी हैं। आगे चलते हैं। आप में से हैं कोई हार्डवेयर वाले, हार्डवेयर जिनकी फील्ड हो? ये मिसाल बड़ी दर्दनाक मिसाल है। यानी एक होता ना दीनी ज़हन, एक यहूदी होगा ना, यहूदी कोशर गोश्त खाएगा, इसके अलावा कभी भी नहीं खाएगा। यूरोप अमेरिका की हर स्टोर पर कोशर गोश्त मौजूद होगा कि जनाब ये वो गोश्त है जो यहूदी ने ज़बह किया है। उसको अपनी जो दीनी तालीमात हैं उस पर नो कम्प्रोमाइज़ होता है, नो कम्प्रोमाइज़। छोटी सी कम्युनिटी अलग। लेकिन यहाँ मुसलमान मुल्क के अंदर मुस्लिम अफराद, मुसलमान लोग ऐसी पॉलिसियां बना देते हैं, ऐसी स्कीम लेकर आते हैं जो सूद पर मुश्तमिल होती है, हालांकि इन्होंने खुद बनाई है। एक बंदा कहता ना जी वो बैंक है, इतना बड़ा इदारा है, तो हम ये कहते हैं कि आप दो अफराद मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, हमारे पास बैठ जाएं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 12 सूरतें बयान कर देंगे हम। बाज़ औक़ात होता है कि हम कहते हैं जी आप ऐसा करें, ये जो है वो उसके साथ दुकान पे चले जाएं, कहेगा जी उसको तो पता चल जाएगा मैं माल कितने का लेता हूँ, हमारे पास उसका भी हाल है। हम कहेंगे अच्छा आप यूँ कर लें, कहेगा मुझे उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी, हम कहें यूँ कर लें, यूँ कर लें। तो जहाँ आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरा जो ये काम है ये गलत हो रहा है,
तो उसका मुतबादिल मौजूद होता है। दो अफराद जब निजी तौर पर कोई मामला करते हैं, ऑप्शन खुले होते हैं, इदारों के साथ ऑप्शन खुले नहीं होते। वो कहते हैं हमारी पॉलिसी हमने यही करना है। लेकिन छोटे छोटे इदारे कि जो इदारे तिजारत पर मुश्तमिल ख़ास तिजारत कर रहे हैं, उन्होंने अपने काम के अंदर सूद दाखिल कर दिया है। अब क्या होता है कि पेंट के डब्बे में टोकन डाल दिया गया है कि जनाब असल फ़ायदा तो ये है कि वो जो रंग वाला है ना, जो रंग करता है दीवारों पर, ये रकम वो मालिक से मांग लेता है, ये रकम दे दो ना मुझे। और फिर वो रंग वाला ज़हन बनाता है कि वो रंग बड़ा अच्छा है, वो लेके आइएगा। उसको पता है कि वो कंपनी ज़्यादा पैसा डालती है। चलो, पैसा डालना कोई मसला नहीं है, शरीयत में कोई मना नहीं है। आप किसी मॉल में जाते हैं, माल वाला कहता है जी हम आपको पॉइंट देंगे, आप खरीदारी करें, आपको पॉइंट मिलेंगे, फिर उन पॉइंट से आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये इनाम है। क्या है ये? इनाम है। वो दें या ना दें कंडीशनल मामला नहीं है। इसी तरीके से पेंट के डब्बे में कोई पैसा डालना, मिसाल के तौर पर 5,000 का डब्बा है और उसमें 500 रुपये डाल दिए। सबको पता है कि अब ये डब्बा जनाब 4,500 का है। जब 500 डाल देगा 5,000 के डब्बे में, तो आप उस डब्बे की कितनी कीमत रह जाएगी? 4,500। इसमें कोई कबात नहीं है, शरीयत से कोई तरीका नहीं टकराता, यहाँ तक तो बात ठीक है। और फिर वो डब्बे में वो टोकन निकले और दुकानदार से आकर ले जाए। सवाल ये पैदा होता है कि दुकानदार ने तो कंपनी का सील पे एक डब्बा बेचना था, उसने बेच दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब वो जो चाहे कर सकता है। वो क्यों बाउंड है कि जनाब वो वापस आए और दुकानदार अपनी जेब से पैसे दे उसको? चलो ठीक है, यहां तक भी जायज है, दे दे वो जेब से पैसे। अब ये पैसे दुकानदार कंपनी से वापस लेता है। कंपनी से बात चीजें ऐसी होती है कि मैं अभी परसों आया हूं यहां पर, तो जहाज में मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, गुफ्तगू होती रही। अब हम मौलाना लोग हैं, मुझे क्या पता ये कौन है। फिर पीछे से कोई साहब आए तो पता चला ये कोई अदाकार है। मैंने दावत दी बयान की, सूद पर मौजू है कि मौलाना साहब सूद से बचना कहाँ मुमकिन है? आप जहाज में बैठे भी सूद पे चल रहा है, ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको भी सूद पे तनख्वाह मिल रही है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद करता है ना, उस तरीके से आंखें बंद कर लेते हैं कि जहां बचना होता है हम अपने आप को कहते हैं नहीं जी हमने नहीं बचना, सारा गलत हो रहा है, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, गलत करो गलत करो। ऐसा नहीं होता। जो एक आम कस्टमर आया, उस आम कस्टमर और दुकानदार के दरमियान कोई गलत मुआहदा नहीं हुआ, कोई गलत मुआहदा नहीं हुआ। भाई हम इस हाल में बैठे हुए हैं, अब अगर ये हाल इस मालिक ने सूद पर पैसे लेकर खरीदा है तो ये उसका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। शरीयत इसको हराम नहीं कहती। तो जायज़ और नाजायज़ कहने का दारोमदार किस पर है? शरीयत पर। लोग कहते हैं जी पैसे आप ले रहे हैं, ये आप ले रहे हैं, ये नोट आप ले रहे हैं, सब सूद है, सब हराम है। भाई ये बातें उस वक्त आपको याद आई जब आपको कहा ये काम सूद है, तो आप फट पड़े, मेरे काम को सूद कैसे बोल दिया? मैंने भी बोलना, आपको सुनाना है कि सारा ही गलत हो रहा है। ये एक यूँ समझिए कि आमियाना तरीका है, हकीकत पर मुश्तमिल तरीका नहीं है। तो दुकानदार और एक आम गाहक के दरमियान जो मामला वो तो ठीक है, चीज़ बिक गई, चीज़ ले गया वो बंदा। अब इस दुकानदार ने जब वो टोकन वाले पैसे कंपनी से लेने होते हैं, जमा होते गए 1 लाख रुपए जमा हो गया, तो क्या इस 1 लाख रुपए के बदले दुकानदार ने कंपनी से कुछ माल खरीदा था? बताइए, किसी माल के पैसे देने? ये ऐसा ही है कि आपके पास खुले पैसे ना हो, आपका पास वाला आ जाए, मुझे हाजी साहब ज़रा 500 रुपये देना, और वो हाजी साहब से 500 रुपये लेके अपने गाहक को देके फारिग कर दे।
ये हवाला कहलाता है। या आप किसी पार्टी को चेक देना है, आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने दोस्तों को यार आप जरा चेक दे दो, तो ये उसने आपके ब्याह पर दिया है ना, तो ये कर्जा है। ये आपका बराबर वाला दुकानदार आपसे 500 रुपये ले जाता है, वो वापस देता है ना आपको, 500 ही देता है, ज्यादा देता है, 500 ही देता है। लेकिन कंपनी इन दुकानदारों को ऊपर पैसा देती है, इसलिए कि अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे तो ये ग्राहकों को मना कर देंगे कि हम आपको कैश नहीं दे रहे। ग्राहक को रंग का डब्बा बेचना तिजारत थी, लेकिन ग्राहक को टोकन के पैसे देना तिजारत नहीं है। ये दुकानदार ने कंपनी की ब्याह पर कर्जा दिया है, कंपनी की ब्याह पर, ठीक है, जितना दिया उतना वापस ले ले, जायज, कोई मसला नहीं है, कर्जा लेना जायज है। लेकिन दुकानदार कंपनी से जब पैसे लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं। रंग के होलसेलर, हार्डवेयर का काम करने वाले ये काम कर रहे होते हैं। एक साहब थे, उनकी उम्र थी कोई तकरीबन 45 साल हो गई। मैंने एक मरतबा मदनी चैनल पे मसला बयान किया, और वो एक बहुत बड़ी कंपनी के डीलर थे। मेरे पास आए परेशान होके, हम तो ये काम कर रहे हैं, का सूद है। कंपनी के मालिक के पास चले गए, मैंने कहा जी हमारा तो ये निज़ाम है, मार्केटिंग है, एक तरीक़ाकार है, सेल वालों से बात करें। उसने कुछ करना नहीं था, उसने कहा कि मैं कोई पैसे नहीं लूंगा आज के बाद, ठीक है मैं टोकन के पैसे दूंगा लेकिन पैसे कोई नहीं लूंगा वापस। उस मर्द मुजाहिद ने हमसे ये सवाल किया, मुफ्ती साहब ये बताएं अब तक जो मैंने ये पैसा लिया उसका क्या करूं? हमने कहा आपके लिए वो रकम हलाल नहीं थी, बगैर सवाब की नीयत के किसी मुस्तहिक की ज़कात को वो रकम दो, खुलासी उस रकम से हासिल करना ज़रूरी है, तौबा भी और खुलासी भी। ये बात उसके और मेरे दरमियान थी। एक मुफ्ती भी जो है ना डॉक्टर की तरह राजदार होता है, लोग घर के मसाइल, कारोबार के मसाइल बयान करते हैं। उसने खुलासी हासिल कर ली और एक दिन एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फिर मैंने अपने फेसबुक पर उनका ये अमल बयान किया कि उन्होंने पैसे को कुछ छोड़ता नहीं है, आ जाए ना एक दफ़ा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने इतनी हिम्मत पकड़ी कि पिछले कई सालों में जो बहुत भारी रकम बन रही थी, डीलर थे वो, सप्लाई करते थे, ठीक ठाक कंपनी से लेते थे, पता नहीं कितने लाख रुपए उन्होंने बगैर सवाब की नीयत से सदका कर दी कि ये सूद की रकम थी, मैंने नहीं लेनी। और देखा जाए बहुत नेक आदमी थे, तो उनकी नेकियों मैं ज़ाती तौर पे ये गुमान करता हूँ कि वो जो एक नेक और परहेज़गार आदमी थे, मरने से पहले अल्लाह ताला ने इस बुराई से निजात दे के उन्हें अपने पास बुलाया। तो नेक जो अमाल है उनकी बरकत न जाने कहाँ कहाँ ज़ाहिर होती हैं। आगे आते हैं, हमारे साथ डिफरेंट मार्केटों में लोग बैठे हैं और एक प्राइस बांड वाले भी बैठे हैं हमारे दरमियान। प्राइस बांड का काम जायज़ है। प्राइस बांड एक एसिड है। क्या है? एक एसिड है। आजकल टिकट का दौर कम हो गया। पहले ज़माने में क्या होता था, चाइना टिकट भेजेंगे तो इतना महंगा मिलेगा, अमेरिका भेजेंगे तो इतना महंगा मिलेगा। एक ही टिकट होता था मुरब्बा साइज का, है, थोड़ा बहुत चौड़ा भी हो जाता होगा। तो उस कागज़ के टुकड़े के डिफरेंट उसकी कीमतें होती थी। आज हम देखते हैं स्टाम्प पेपर, एक ही A4 का पेपर होता है ना, वही 50 का मिलता है, वही 500 का मिलता है, वही इससे ज़्यादा का मिलता है। तो ये पेपर की कीमत होती है, क्योंकि ये आम पेपर नहीं है, उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। और प्राइस बांड के ऊपर जो नफ़ा मिलना होता है, क्या वो कंडीशनल होता है? बताइए, सूद की तारीफ की थी ना हमने, मशरूत नफ़ा, कंडीशनल नफ़ा। प्राइस बांड का नफ़ा इसी तरीके से है कि एक मॉल वाला, एक सुपर स्टोर वाला कहे कि जो 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 मुझसे ख़रीदारी करेगा, मैंने एक बाइक भी रखी हुई है, मैं बाद में कुरानदाजी करूँगा, किसी एक को बाइक भी मिल जाएगी। तो क्या आपने शर्त पर माल खरीदा था कि आपको बाइक मिलेगी? कंडीशन नहीं है।
बल्कि ये एक इनाम की सूरत होती है, किसी एक को मिल जाएगी। जो भी प्राइज बॉन्ड खरीदता है वो एक एसेट खरीदता है। क्या खरीदता है? एसेट खरीदता है। इसलिए हम कहते हैं अगर कोई ऑन पर भी बेचता है 1500 का प्राइज बॉन्ड 1800 का बेचता है, उसने एक माल तिजारत बेचा है, नो प्रॉब्लम। शरीयत में मना नहीं है। स्टेट में अगर मना करता है, सुना है मैंने आज तक बहुत सारे लोगों ने कहा है मुझे ये कानून जायज़ नहीं है, तो मैंने कहा अगर कानून का मसला तो हमें नहीं पता। शरीयत में मना नहीं, कानून रोकता है तो रुकना चाहिए। अब उस पर जो इनाम निकलता है वो इनाम है। इनाम कभी भी मशरूत नहीं होता, कंडीशनल नहीं होता कि ये आपने 1500 को खरीदा है आपको इतने पैसे मिलने ही मिलने, ऐसा है नहीं है। क्या लॉस होता है? कोई लॉस भी नहीं है। लॉस नहीं होता तो जुआ भी नहीं है। प्राइज बॉन्ड जायज़ ही है, लेकिन पिछले दिनों एक नया प्राइज बॉन्ड निकाला गया है, प्रीमियम बॉन्ड 40,000 रुपये वाला, वो सूदी है। उसका तरीका ही अलग है। बैंक अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, उस बैंक अकाउंट में आपको हर 6 महीने बाद नफ़ा, 6 महीने बाद इतने भी अरसे बाद आपको नफ़ा दिया जाएगा। ये जायज़ नहीं। दुकानदार जब कोई माल बेचता है तो क्या होता है, वो फारिग हो जाता है, ग्राहक जो मर्जी करे उसका। वो ये तो नहीं कहता कि मुझसे माल खरीद लो और मैं आपको नफ़ा देता रहूँगा। तो यहाँ अब तिजारत नहीं रही, प्रीमियम बॉन्ड के अंदर अब तिजारत नहीं रही, अभी कर्जे की सूरत आ गई है, उस पर वो नफ़ा दे रहे हैं आपको। आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड। एक बंदा क्रेडिट कार्ड अकाउंट जब ओपन करता है तो वही कहता है आई एम एग्री टू पे इफ आई एम लेट टू पे इंटरेस्ट। अगर मैंने लेट हो गया तो मैं ये मायदा करता हूँ बैंक से कि मैं सूद दूंगा, मुझे ये शर्त मंजूर है। एग्रीमेंट पर साइन करता है तो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट खुलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है और वो परचेजिंग कर सकता है। फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फर्क तो पता है ना सबको। डेबिट कार्ड कर्जा नहीं होता, आपके अपने पैसे होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर बैंक का पैसा होता है, आपको 40 दिन के अंदर वापस करना होता है। तो क्रेडिट कार्ड का जब आपने एग्रीमेंट किया और ये मायदा किया कि मैं सूद दूंगा, तो ये एक गलती पाई गई। आपने सूद देने पर रजामंदी का इजहार किया है। एक हदीस पाक में है कि ज़माना आएगा कि सूद से बचना, सूद में लोग मुब्तला हो जाएंगे, खुलासा ये। तो अब देखिए, अच्छा खासा आदमी ये मायदा साइन कर रहा होता है, मैं दूंगा, मैं राजी हूं उस पर। अब अगर वो लेट कर देता है पेमेंट, तो अब दूसरी गलती पाई गई कि उसने अब बैंक में ज्यादा पैसे लेने उससे। अब दूसरी गलती पाई गई कि उसने जो पैसे बैंक को दिए इजाफी, वो सूद इसने दिया, सूद देने का गुनाह पाया गया। कॉर्पोरेट लेवल पर या ट्रेवल की दुनिया के अंदर एक चीज पाई जाती है कि ये आईटा कंपनियां जो होती हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप करोड़ों का वो बिजनेस करोगे और आप फ्रॉड भी कर सकते हो, तो जो कस्टमर है वो परेशान हो जाएगा, आप हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाओ। ट्रेवल कंपनियों के लिए ये बाउंड किया होता गवर्नमेंट ने कि हमारे पास इतने करोड़ रुपए आपने जमा करवाने हैं तो हम आपको लाइसेंस देंगे। पता चला कि जनाब आपने जाली टिकट बेच के आप फरार हो गए, हम वहां से फिर आपकी रिकवरी कर लेंगे। वो कहता है कि मेरे पास तो यही 1 करोड़ रुपए और मैंने बिजनेस में लगाए हुए हैं, मुझे क्या जरूरत है मैं 5 करोड़ रुपए जमा करवाऊं या 1 करोड़ रुपए जमा करवाऊं। वो बैंक के पास जाता है, बैंक कहता ठीक है आपके ब्याह पर हम जमा करवा देते हैं, बस आप हमें महीने का इतना देते रहिएगा। अभी कैलकुलेशन करता है, मैं 1 करोड़ रुपए जमा करवाता हूं, यहां पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ से मैं बिजनेस करता हूं तो मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा सकता हूं, बैंक को मुझे देने पड़ेंगे 5 लाख रुपए, मुझे तो फायदा हुआ, मेरी रकम भी बाउंड नहीं हुई
और मुझे 5 लाख महीने का फ़ायदा हो रहा है, वो कहता है बैंक को आप मेरी तरफ से रकम जमा करवा दो, मैं आपको 5 लाख रुपये दे दिया करूँगा। तो इसने बैंक को किस बुनियाद पर पैसे दिए? जो कर्जा बैंक ने इसके नाम पर दिया है उसके ऊपर पैसे दिए। ये हज उम्रे के कारवान, टूर चलाने वाले, ये सब ये काम कर रहे होते हैं। काम कितना मुकद्दस है, और उसके अंदर बैकग्राउंड पर एक ऐसा मायदा उन्होंने किया हुआ है कि जिसमें वो सूद दे रहे होते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है भाई। आप 100 हाजियों का कोटा भी, कराची में कंपनी बिकी है, 100 हाजियों का कोटा 7 करोड़ का फरोख्त हुआ है। आपका इतना पैसा है कि आप 7 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, आप 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट जमा नहीं करवा सकते, तो आधा कोटा बेच दें, कितना बेच जाएगा? अगर 7 करोड़ की फरोख्त हुई है तो वो 3.5 करोड़ का बिक जाएगा, आपका पैसे आ जाएंगे, आप थोड़ा सा नफा कम कमा लें। सूद से बचना आसान है। आपके नहीं जी मैंने लग्जरी लाइफ गुजारनी है, उम्रे पे जाके मैंने 5 स्टार होटल में दिल्ली का 2000 दिरहम पे करना है, मैंने पूरा महीना वहाँ मक्के मदीने की बरकतें लूटनी है। हलाल रकम से, छोटे से जो है ना वो 2 स्टार होटल के अंदर भी आप जाके रह लेंगे तो मक्के मदीने की बरकतों का ताल्लुक 5 स्टार होटल से तो नहीं है ना, तो काबे के नूर से, गुम्बद खजरा के नज़ारों से, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में की जाने वाली इबादतों से उसका ताल्लुक। तो हमने कुछ चीज़ों को इस तौर पर अपनी मजबूरी बनाया होता है जी मेरा स्टेटस जो है वो नीचे आ जाएगा। अच्छे बड़े घर में रह रहे हैं, सूद पर पैसा लेके बंगला लेंगे, जी मेरी ज़रा PR बन जाएगी। यानी मजबूरी में भी सूद लेना आम हालात में जायज़ नहीं है, सूदी कर्जा लेना। कुछ सूरतें उलमा ने बयान की हैं। वो जिस तरीके से डॉक्टर होता है ना, पूछता है कि आपको ये टीका रास आएगा या नहीं आएगा, पहले बताएं, पहले लगवाया है, अब अपनी कैफियत बताते हैं। तो इसी तरीके से एक मुफ्ती के पास जाकर बंदा अपनी कैफियत बताता है कि मेरी ये मजबूरी आ गई है, अब मेरे लिए क्या ये जायज़ होगा। कुछ सूरतें ऐसी मुमकिन निकल आए, कुछ सूरतें बयान की गई हैं, लेकिन यहाँ क्या ज़रूरत है? आप उस हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं कि कुरान कहता है कि सूद जो लेना है वो अल्लाह ताला से जंग है। तो फिर कहते हैं आप वो ट्यूमर हो गया है, वो फालिज हो गया है, वो कैंसर हो गया है। तो जो जिस्म हराम से परवरिश पाएगा क्या होगा उसके अंदर? अरबी का एक मुहावरा है, फर्रा मिनल मतरी कामा तहतल मिजाब। बारिश थी, उनका कपड़े गीले हो जाएंगे, किसी चीज के नीचे खड़े हो जाते हैं, वो यहाँ के खड़ा हो गया। ये था परनाला, वहां तो छींटे आने थे, यहाँ पूरा इसने भीग जाना है। तो बाज़ औक़ात आदमी किसी काम को सही करने जा रहा होता है, इतनी बड़ी गलती करता है कि उससे पहले वाली गलती से कई गुना ज्यादा हो जाती है। ये कब होता है कि जब वो अपने आप सोच रहा होता है यूं कर लूँ, हाँ यूं कर लेता हूँ, खुद ही मुंसिफ, खुद ही जज, खुद ही सब कुछ। मोबाइल कंपनियों ने एक अकाउंट शुरू करवाया कि जनाब आप 2000 रुपए जमा करवा दें हमारे पास, रोज के इतने 100 फ्री मिनट है जनाब, बड़ी मेहरबान होगी कंपनी। उसने ये 2000 रुपए किसी तिजारत के बदले में नहीं लिए। ये क्या है 2000 रुपए? हमारे कंपनी के ऊपर कर्जा है, काबिल वापसी है, जब चाहे वो गाहक निकाल सकता है। कर्जा ना देता तो ये नफा ना मिलता, पैसा तो हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बेनिफिट मिल रहा है। ये बेनिफिट सूदी बेनिफिट है। प्राइवेट कंपनीज में प्रोविडेंट फंड एक होता है, उसमें ये होता है कि 8% हमारी सैलरी से काटा जाता है और 8% एक्स्ट्रा कंपनी डालती है और साल के बाद वो मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा कंपनी डालती है क्या वो सूद में है, क्या नहीं नाजायज है? जो कंपनी डालती है वो आपके एग्रीमेंट का हिस्सा होता है, यानी आपको सैलरी देती है मिसाल के तौर पर 30,000 रुपये कैश, और 8% वो आपको अलग से जमा कर रही है। आपके एग्रीमेंट में होता है कंपनी ये करेगी, वो उजरत का हिस्सा है। जो पैसे प्रोविडेंट फंड में कंपनी डालती है वो हलाल है, लेकिन जो पैसे बैंक में इजाफी जमा हो जाते हैं वो हलाल नहीं है। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोल